B.K. Vasanta Didi will take our next lecture in the series of our workshop. And brief introduction, Didi ji is a senior Raj Yoga faculty in Shanti Sarovar itself, or she has been rendering his wonderful services here. And she is an eminent and outstanding motivational speaker, meditation guide, and she is taking various personality development courses in various hospitals with the armed forces as well, with corporate world. So according to her qualifications, so Didi ji has completed her MA and MPhil in English literature. She is also a MBA in self-management and crisis management from Annamalai University. And she did her MA and MPhil from Acharya Nagarjuna University. And she worked as lecturer at several educational institutes before becoming full-time faculty in Brahma Kumaris. And as per the global exposure, global seva, so Didi has done a wonderful global sevas in countries like UK, Trinidad and Tobago, Suriname and Barbados, UAE and South Africa. And based on her wonderful global exposure and sevas, I would like to draw your attention that South America government accorded Didi for Ambassador of Peace Award 2008. We can clap, give a big round of applause for this wonderful achievement. And in 2011 also, Didi ji is blessed with Peace Builder Award in 2011. Please, clapping should be there because this is not a small award. And from Association of Ambassador and Peace. And the main thing is, apart from this, हम देख रहे हैं Didi, apart from these qualifications, with cheerful nature and energetic, which we see in 36 virtues. So Didi is presently living with these values of cheerfulness and energetic and politeness behavior. And we all are inspired by her. And when we see her, it's a backbone of all function. And she will be taking the lecture, mental imaginary. So which is very important. So for more details and for more knowledge, Didi will put a wonderful enlightenment on this knowledge. So let us give a big round of applause. So B.K. Vasanta Didi ji, thank you so much. Please, Didi. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Vijay Bhai, for that introduction. तो पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और आप सब सोचते होंगे गोपीचंद भैया आएंगे. हाँ, आ रही है थोड़ी देर में, तब तक ये सेशन रखेंगे, तब तक वो ज्वाइन हो जाएंगे. तो अभी का हमारा सेशन है, क्या है? मेंटल इमेजरी. किसके लिए? फॉर विनिंग, फॉर पीक परफॉर्मेंस, राइट. ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स जगत के लिए, क्योंकि इसमें ये सब्जेक्ट में हम सब करते ही रहते हैं. ये सब्जेक्ट का प्रैक्टिस तो हम करते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चों को बाबा हर रोज़ हमको कैसे दृश्य देखना है वो सिखाते हैं. आज सवेरे भी स्वामी भाई के सेशन में कंसंट्रेशन माना क्या बताया? जब हमारी और बुद्धि एक ही तरफ काम करता है, एक ही टाइम में काम करता है, दैट इज़ व्हाट कंसंट्रेशन इज. वो ही एकाग्रता है ना. तो ये बेस है हमारे आज के सब्जेक्ट इमेजरी का, मन और बुद्धि. तो
हम सभी को मालूम है मन जो है संकल्प करने वाला फैकल्टी, तो देखने वाला कौन? बुद्धि। तो ऑडियो एंड वीडियो दोनों चाहिए, राइट? तब एक्सपीरियंस अलग रहता है। आपको याद होगा हमारे बचपन में रेडियो से चलता था, बहुत सालों पहले की बात। तो सिर्फ हम सुनते थे, तो जब सुनते थे तो हमें अपने आप एक वीडियो क्रिएट करते थे, है या नहीं? हाँ, कोई नाटक सुन रहे हैं तो नाटक में जो बैकग्राउंड है वो पूरा समझाते थे। अभी ये हॉल है, ये हॉल में कितने खिड़कियां है, कितने लाइट्स है, या कौन से कलर के लाइट्स है, राइट? और क्या क्या है, चेयर्स कितने हैं, और कौन कौन से लोग बैठे हैं, स्टेज पर कौन है, ऐसे सब चीज़ें हमको बताते थे। और हमारे बुद्धि के द्वारा, वो नेत्र के द्वारा हम पिक्चराइज करते थे, राइट? वो हम पहले करते ही थे। फिर जब वीडियो का ज़माना आया, टीवी आया, तो क्या हुआ? विजुअलाइजेशन कम हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी हमको वो पिक्चर क्रिएट करके दे रहे हैं। तो बुद्धि का जो नेत्र है उसका काम थोड़ा कम हो गया। एग्री? यस? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं मेंटल इमेजरी में? एक है ऑडियो, मन ऑडियो क्रिएट करता है, अर्थात संकल्प क्रिएट करता है, और बुद्धि को वीडियो क्रिएट करने देना है। तभी वो हमारा एक्सपीरियंस बनेगा। जब तक हम ऑडियो के साथ वीडियो मैच नहीं करते, तब तक दैट वोंट बिकम आवर ओन एक्सपीरियंस। सुना है लेकिन भूल भी जाते हैं। जो अनुभव हुआ है वो कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत डीप अंदर सबकॉन्शियस तक चला गया है। इसीलिए मन और बुद्धि को एक ही टाइम पर चलाने का काम ये मेंटल इमेजरी। तो ये हम सब करते ही आए हैं। बाबा के बच्चे तो बाबा हर रोज कहते हैं, बच्चे इनको सकाश दो, हम यहाँ पर युद्ध चल रहा है, यहाँ पर कैसे ठीक हो जाए। या हमारे घर वालों को भी हम कहते हैं बाबा इनका बुद्धि का ताला खोल दो, तो उनको भी विजुअलाइज करते हैं। किसी को तबीयत ठीक नहीं है, उनको ठीक हो जाए, वो भी देखते हैं। तो हम ये एक्सरसाइज करते ही आए हैं। तो ये नया सब्जेक्ट नहीं है बाबा के बच्चों के लिए। तो इसको थोड़ा सा अभी स्पोर्ट्स में कैसे अप्लाई करना है ये अभी सीखेंगे। तो ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत रहता है, राइट? तो मेंटल इज रिलेटेड टू माइंड एंड इमेज चित्र, राइट? मेंटल इमेजरी बुद्धि के द्वारा, मतलब वहाँ पर मन बुद्धि का एक ही कनेक्शन है, माइंड ही बोलते हैं, हाँ, मन की आंखों से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा ने हमको उसको और भी थोड़ा सा एलैबोरेटेडली बताया। माइंड इज ओनली थिंकिंग फैकल्टी, फीलिंग फैकल्टी, एक्सपीरियंसिंग फैकल्टी इज कौन? बुद्धि जो है जब चित्र निर्माण करता है तब हम फील कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, राइट? तो मेंटल इमेजरी, तो इसमें क्या देखना है अभी वो हम सीखेंगे, राइट? बेस समझ में आ गया ना सभी को इसमें? तो मेंटल इमेजरी हर लाइन ऑफ फील्ड में चल रहा है। जैसे हम देखते हैं आज हेल्थ ठीक नहीं है किसी को, डॉक्टर्स भी एक्सरसाइज कराते हैं। आपको ठीक हो गया ऐसा देखो, आप ठीक नहीं है, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है आपका, जो आपका तबीयत ठीक हो ना, वो देखो, बार बार देखो देखो देखो। क्योंकि हम कहते हैं ना, हाँ, जैसा सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। इसीलिए सोचना माना सिर्फ सोचने की बात नहीं है, लेकिन इसके साथ वो फीलिंग्स और इमोशंस के साथ
जब हम करते हैं तभी वो विजुअलाइजेशन, उसको हम यूजुअली विजुअलाइजेशन कहते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के लैंग्वेज में उसको मेंटल इमेजरी कहते हैं। तो आपके प्रोफाइल में आप जो जो सब्जेक्ट लेंगे लेटर्स में, आप ये सब्जेक्ट भी रखेंगे ना, मेंटल इमेजरी, वो लोग बहुत फास्ट उसको कैच कर सकते हैं स्पोर्ट्स वाले, क्योंकि उनके लैंग्वेज में आप बात करेंगे ना, थोड़ा टेक्नोलॉजी उनके यूज़ करेंगे ना, तब वो बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हमको समझाने के लिए बेस ये है। तो मेंटल इमेजरी इज इन लाइफ इज अ क्रूशियल टूल फॉर एनीवन्स पीक परफॉर्मेंस। जैसे अभी बताया, नॉट ओनली स्पोर्ट्स जगत में, लेकिन हर फील्ड में चाहिए। जैसे मेडिकल फील्ड का अभी तक बताया, टैपिंग इनटू द पावर ऑफ इमेजिनेशन इज लाइक रिलीजिंग ए ब्रेक। तब तक वो मन को हम ब्रेक लगा के रखा है, जब ब्रेक को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, देयर इज नो बाउंड्रीज एनी मोर, राइट। तो क्या होगा, इट अलाउज द माइंड एंड बॉडी टू वर्क इन ग्रेटर हार्मनी। क्योंकि आज बहुतों का प्रॉब्लम क्या है, मैं जो सोचती हूँ वो कर नहीं पा रही हूँ। सोच तो बहुत है, मेरे को ये अचीव करना है, यहाँ तक जाना है, ये टूर्नामेंट्स में मेरे को जीतना है, सोच बहुत है, लेकिन बॉडी उस अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा है ना। तो अभी वो ब्रेक जब हम रिलीज कर रहे हैं थ्रू मेंटल इमेजरी, तो क्या होगा, बॉडी एंड माइंड दोनों सिंक होके काम करेंगे। समझ में आया बात, राइट। तो थोड़ा सा फास्ट बताएंगे क्योंकि अभी वो भी आने वाले हैं भैया भी। तो इसमें मतलब वो लोग सोचते हैं, हमको भी मालूम होना चाहिए कौन कौन किए हैं ये स्पोर्ट्स जगत में, कोई किए हैं क्या करके। तो एक फेमस एग्जाम्पल है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, कितने लोगों को मालूम है माइकल फेल्प्स? मालूम है ना, कौन है वो? स्विमर। कहाँ का? राइट। तो अमेरिकन स्विमर है और उनका इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। कितने मेडल्स जीते थे? इट वॉज 28 ओलंपिक मेडल्स। पूरा इंडिया का जो है उसमें 23 जो है गोल्ड, फिर 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, पूरा मिला के 28 मेडल्स हैं। तो पूरा इंडिया में अभी तक हमको इतना मेडल्स नहीं मिला है। वो एक ही व्यक्ति ओनली ओलंपिक्स में 4 ओलंपिक्स देखा है उन्होंने। 2002 से अभी जो रिसेंट ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स तक 4 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल्स जीते हैं। कितना बड़ा पर्सनालिटी होगा। तो उन्होंने एक बार बताया कि वो विजुअलाइजेशन टेक्निक कैसे यूज करते हैं। मैं वीडियो भी आपको दे देंगे। हाँ, बॉब बोमैन करके उनका कोच है, जो स्विमिंग कोच है, उन्होंने बताया कि इसने कितना रिगरसली प्रैक्टिस किया। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देंगे हम। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में एक बार उनका गॉगल्स जो था वो लीक हो गया, राइट। बहुत थिक ग्लास रहता है क्योंकि पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, आंखें बंद हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है उनका। लेकिन उनका जो कवर है ये फट गया था, उसके बावजूद भी उनको गोल्ड मेडल मिला उसी ओलंपिक्स में, उसी जो मैच था, टूर्नामेंट था उसमें। तो उनको पूछा गया कैसे आप कर पाएंगे, तो उन्होंने ये बताया कि ये तो फिजिकली अभी हुआ, लेकिन उसके पहले मैं माइंड में कितने हजारों बार तो मैं स्विम कर चुका हूं। कितने बार मुझे जाना है, कितने बार करने के बाद मैं कहां तक पहुंच पाऊंगा। आंखें नहीं दिख रहे हैं, ब्लाइंड हो गया है, आंखें बंद हैं, फिर भी विदाउट सीइंग ही हैज विजुअलाइज्ड। ही सेड 10,000 times I have visualized this in my mind.
देखा है कितने बार, कितने लैप्स लेंगे तो वहां तक पहुंच पाएंगे, कितने बार वापस आना है, कहाँ तक पहुंचेंगे तो कितने लैप्स में पहुंचेंगे, कितना स्ट्राइड्स लेना है, वो बार 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 देखा है। ड्राई रन। तो उससे क्या हुआ उनको कि वहां पर उस समय दिख नहीं रहा है, फिर भी ही वॉज एबल टू अचीव द गोल, राइट। इनका एक वंडरफुल एक्सपीरियंसेस है, आप यूट्यूब में देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस है इनका, लेकिन कुछ क्लिप्स जो है, जो हम जो बोलते हैं उसके अपीलिंग जो है, वो एक वीडियो बाद में दिखाएंगे आपको। और ముందుకి हाँ ओके। और एक एग्जाम्पल इंडियन सिनेरियो में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? विराट और सचिन। तो विराट कहते हैं, ये आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है, विजुअलाइजेशन सचिन ने कैसे किया है। आई रिमेंबर स्पीकिंग टू सचिन पाजी एंड ही वॉज टेलिंग मी अबाउट द सेंचुरी टू ही हिट in Cape Town in 2011. He referred specifically to a shot he hit of Mon Morkel. He said that he had visualized that shot 2 days back in his mind, that this will happen. पहले से ही। विराट कोहली का भी एग्जाम्पल है, वो भी वीडियोस है, आपको दे देंगे, वो भी कितने बार प्रैक्टिस करते हैं। इट्स नॉट इजी, आप हमारे पिचेस के ऊपर कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया जब भी बाहर का मैचेस है उसमें वो 2-3 महीने से लगातार 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 कैसे मुझे वहां पर प्ले करना है, बहुत बार अंदर ये चिंतन चलता ही रहता है, उससे ही मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं करके विराट कोहली का भी एग्जाम्पल है। तो फिर एंड व्हेन इट केम, उन्होंने पहले ही विजुअलाइज किया, व्हेन इट केम दैट मोमेंट हिज माइंड वाज सो स्ट्रांग, थिंकिंग पॉजिटिव, हिज बॉडी जस्ट फॉलोड ऑटोमेटिकली। क्योंकि इधर बहुत बार हो गया ना, प्रैक्टिस हो चुका है ना, तो अभी ऑटोमेटिकली उनका ज्यादा एफर्ट ही नहीं है, फिर शरीर अपने आप काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि माइंड को प्रोग्रामिंग दे दिया। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार 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 प्रोग्रामिंग दे दिया तो ऑटो मोड में चला जाता है माइंड। मालूम है ना, ऑटो मोड में बार बार एक ही रोड में आप ड्राइव कर रहे हैं तो कुछ दिन के बाद आप फोन में भी बात कर रहे हैं, इधर कुछ भी खा भी रहे हैं, इधर देख भी रहे हैं, किसी से बाजू में बात भी कर रहे हैं, फिर भी आप यू कैन एबल टू ड्राइव, क्योंकि ऑटो मोड में चला गया है आपका ड्राइविंग। तो ऐसा यहाँ पर बहुत एफर्ट नहीं चाहिए, फिर भी ऑटोमेटिकली ही वॉज एबल टू फॉलो। These sorts of things people do not understand. थोड़ा सा मुश्किल है क्या, मतलब हमको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा नहीं होगा करके सोचते हैं, लेकिन इट्स वेरी डीप साइंस कैसे होता है। जैसे आज सवेरे एक एग्जाम्पल स्वामी भाई ने भी कोट किया, लेकिन वो मैं साइंटिफिकली भी आपको दिखाऊंगी। तो इसका मतलब क्या है, इफ यू कैन इमेजिन इट यू कैन अचीव इट। कितना अच्छा ये स्लोगन देखो, इफ यू कैन इमेजिन इट यू कैन अचीव इट, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन बिकम इट। समझे ये बात को? इफ यू कैन इमेजिन इट यू कैन अचीव इट। किसी किसी को दिखता भी नहीं है। और एक मैं भूल गई हूँ उनका नाम क्या है करके, एक अमेरिकन स्विमर है, वो भी लेडी है, उनका ये एक्सपीरियंस रहा है। वो इंग्लिश चैनल पार कर रहे थे। इंग्लिश चैनल पार करने के टाइम पर इतना फॉग का टाइम था और इतना विंटर टाइम था कि उनको थोड़ा देर जाने के बाद सामने कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक आधा किलोमीटर में उनका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। फिर उस समय शी लेफ्ट हर स्पिरिट्स
शी सेड टू हर कोच, मेरे को अभी नहीं होता, मैं ऊपर आ जाती हूँ पानी में, बाजू में बोट जाता है ना उनका, स्विमर्स के बाजू में, तो उसमें आ गई। उनको बताया नहीं, यू गो, यू विल अचीव वेरी फास्ट। शी सेड नो, आई कांट डू। थोड़े दिन के बाद, वेदर चेंज होने के बाद, शी कुड एबल टू अचीव द सेम टूर्नामेंट। फिर उनको पूछा क्यों उस समय आप नहीं कर पाए, तो वो कहती हैं कि इसके पहले जब मैं अपीयर हुआ उस प्रोग्राम में, उस समय मैं देख नहीं पा रही थी कितने दूर में मेरा टारगेट है, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कितने दूर में मैं पहुंच पाऊंगी। अब लेकिन अभी मेरा टारगेट जो है वो दिख रहा है, इसीलिए कितना भी प्रॉब्लम्स आए, आई कुड एबल टू अचीव माई गोल। अर्थात इफ यू कैन इमेजिन इट, आप अगर देखते हैं तो क्या होगा, यू कैन अचीव इट। दैट इज व्हाट जनरली बड़े ड्रीम बिग। यस, अब्दुल कलाम जी का भी वही है ना, ड्रीम बिग। तो इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन बिकम इट। ऐसे कुछ कोड्स आप देंगे ना उनको, बच्चों को भी या बड़ों को भी, वो बहुत आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ट्रेनिंग क्लास है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम निकाले हैं, थोड़ा मैंने निकाला है, लेकिन इस बार मैं कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे कमिटमेंट्स थे। लेकिन अभी टच में रहेंगे तो फिर भेजते रहेंगे। कुछ कोड्स ऐसे बहुत सारे निकाले हैं हम। तो So mental imagery is nothing but mental rehearsal. अब फाइनल के पहले बाबा कहते हैं ना, रिहर्सल्स चल रहे हैं। तो रिहर्सल्स कितने बार करेंगे उतना फाइनल्स में ठीक परफॉर्मेंस रहेगा, है ना। तो मेंटल रिहर्सल और विजुअलाइजेशन इज डिफाइंड एज सेंसरी फिनोमिना यू एक्सपीरियंस इन द थिएटर ऑफ योर माइंड। ये इंपॉर्टेंट है। Sensory phenomena. What is sensory phenomena? What does it mean? Felt by your senses as well. What are the senses? कौन कौन से? ये खड़े होके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। बोलो ऋषिका बहन। राइट, सबको मालूम है ना, 5 इंद्रिया, कर्म इंद्रिया जो सेंस ऑर्गन्स है, उसको हम इन्वॉल्व करेंगे, तब यू कैन एबल टू फील देम। एनी इवेंट, विजुअलाइजेशन, चित्र देखना, सिर्फ चित्र देखना ही नहीं। जैसे कुछ बहुत अच्छा सीन चल रहा है मूवी में, तो वहां पर मूवी में चल रहा है, लेकिन इधर हम देखते देखते जैसे कि हम वो देख रहे, हम वो कर रहे हैं। लेट्स से कुछ फाइटिंग चल रहा है, इधर इतना पैशनेटली फील करते हैं कि जैसे कि हमारे साथ फाइटिंग हो रहा है, जैसे हम ही एक हीरो है। या गेम प्ले कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहे हैं, वो लोग वहां पर खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इतना जोश चलता कि एज इफ आई एम इन द कोर्ट। राइट, कब होता ये, कब होगा ये? जब यू पुट योर सेंसरी ऑर्गन्स, तब यू कुड एबल टू फील इट। यस, तो इसके साथ विजुअलाइजेशन, इट्स नॉट जस्ट मियर द चित्र देखना, लेकिन इसके साथ बहुत ये 5 जो सेंस ऑर्गन्स है उसको भी लगाना है। हाँ, राइट, उनको भी लगाना है। तो थिएटर ऑफ द माइंड में वो देखना बार बार। तो फिर ये क्यों ऐसा होता है, कैसे होता है? हाँ, तो इसके पीछे साइंस क्या है फिर? हाँ, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड मेंटल इमेजरी? कैसे होता है? देखिए, आप एक जंगल में रोज चल रहे हैं, एक ही रास्ते में चल रहे हैं, जंगल है, लेकिन जहां जहां आप चलते हैं वो फिर थोड़े देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद क्या होगा? एक इजीली एक पाथवे बन जाता है, वहां का घास जो है वो सब निकल जाता है, फिर एक फुटपाथ जैसा बन जाता है, आप उस पे चलते हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर वो एक रोड ही बन जाता है, दूसरे भी चलने लग पड़ते हैं उसमें।
तो जैसे यू आर क्रिएटिंग ए पाथ, तो साइंस क्या है एक्चुअली? The central nervous system cannot distinguish between actual physical movement and the one that is clearly imagined. Here it is not only imagined, clearly imagined. इसके बारे में मैं बताऊंगी. तो जो हमारे ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, इसको जो एक्चुअल है, रियलिटी है, जो चित्र देख रहे हैं, दोनों का डिफरेंस मालूम नहीं है. जो आप चित्र देख रहे हैं या रियली कर रहे हैं, दोनों का जो न्यूरल नेटवर्क्स है ना, वो सेम ही है. इसमें आपको बताऊंगी मैं. तो ये क्या बोलते हैं साइंस वाले? द ब्रेन हैज सिमिलर न्यूरल एक्टिविटी व्हेन यू इमेजिन परफॉर्मिंग ए स्किल एज व्हेन यू फिजिकली परफॉर्म इट. ब्रेन को मालूम नहीं है आप कर रहे हैं फिजिकली या सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हैं. दोनों का डिफरेंस मालूम नहीं है. तो आप अगर फिजिकली परफॉर्म कर रहे हैं, जितना आप देखते हैं उतना ही अगर आप विथ फीलिंग्स या आप विजुअलाइज करेंगे तो भी सेम परफॉर्मेंस लेवल होता है. यहां पर आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी मैं. तो ये स्टडी जो सवेरे भाई साहब बता रहे थे, ये साइंटिफिक स्टडी है. तो यह स्टडी कंडक्टेड बाय बियासिटो एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. तो इसमें जो बास्केटबॉल का बताया भाई साहब ने, ये साइंटिफिक रिसर्च है. इसमें 3 ग्रुप्स बताए हैं. तो फर्स्ट ग्रुप जो है, ना మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది. इधर सेटिंग चेंज किया तो पूरा लेटर्स चेंज हो गया. ओके, फर्स्ट ग्रुप क्या है कि उनको एवरीडे बास्केटबॉल कोर्ट में जाके खेलना है 20 मिनट्स. ये फर्स्ट ग्रुप का है. 20 मिनट्स फिजिकली वो कोर्ट में जाके खेलना है. एंड सेकेंड ग्रुप क्या करना है कि वो बास्केटबॉल के कोर्ट में नहीं जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, घर में ही बैठे हैं, लेकिन 20 मिनट्स with feeling, with emotions, feeling all the sensory organs involved in that thought. आप 20 मिनट कैसे खेल रहे हैं वो देखना है. जैसे कि आप कोर्ट में खेल रहे हैं, ऐसे कैसे वो बास्केटबॉल को आपको पॉकेट करना है, कैसे आप घूम रहे हैं, कितने लोग हैं आपके साथ, कौन कौन रहे हैं, कौन से कलर के जर्सी पहने हैं आप, कितने लोग आपको देख रहे हैं, वहाँ का आवाज कैसा है, वहाँ का फील क्या है, ये सब आपको देखना है. ये कौन है? सेकेंड ग्रुप. एंड थर्ड ग्रुप ऑल्सो वॉज इन्वॉल्व. सो थर्ड ग्रुप क्या किया? द थर्ड ग्रुप डिड नॉट प्रैक्टिस फ्री थ्रोज और विजुअलाइजेशन. दोनों नहीं किया, उनको ऐसे ही छोड़ दिया. तो रिजल्ट क्या रहा? ये आफ्टर 28 days ऑफ प्रैक्टिस, ऐसा करने के बाद, इसमें नहीं है लेकिन रिजल्ट ये पाया गया है, फर्स्ट ग्रुप इज 24%, राइट, एंड सेकेंड ग्रुप्स परफॉर्मेंस इज 23%. ऑलमोस्ट सेम. ये लोग नहीं गए और वो फ्री थ्रोस नहीं किया, प्रैक्टिस भी फिजिकली नहीं किया, फिर भी उनका परफॉर्मेंस लेवल इज 23%. जो जाके फिजिकली किया है उनका परफॉर्मेंस लेवल वाज 24%. इसीलिए इसके पहले स्लाइड में हमने देखा ब्रेन को जो एक्चुअल चीज है, जो रियल चीज है, आप ये मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी ये रियल कर रहे हैं या आप विजुअलाइज कर रहे हैं, ये दोनों में डिस्टिंक्शन मालूम नहीं है, डिफरेंस क्या है मालूम नहीं है, राइट. तो ये विजुअल इमेजरी का जो, हाँ आप यहां पर देखेंगे तो पूरा डिटेल्स है. तो ऑलमोस्ट द सेम इंप्रूवमेंट 23%, 24, 23 is marked in group 1 and 2, right. So
इसलिए विजुअल इमेजिनेशन इज वेरी मच ఇక్కడ రావట్లేదు రాదా ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే వెనక్కి వెళ్ళండి వెనక్కి 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 ఇంకా వెనక్కి ఇంకా వెనక్కి ఇంకా వెనక్కి तो जैसे अभी एग्जाम्पल सुनाया, एक तो माइकल फेल्प्स का आप बता सकते हैं, यस आप माइकल फेल्प्स का बता सकते हैं, विराट कोहली का बता सकते हैं, सचिन तेंदुलकर भी अभी कुछ वीडियोस है बट नॉट सो विविडली दे आर, बट फिर से చేంజ్ हो गया నాకు ఇచ్చారా ఏది కదలట్లేదు yeah the brain has similar neural activity when you imagine performing a skill as when you physically perform it. दोनों में जो है डिफरेंस उसको मालूम नहीं है, इसीलिए जितना जितना आप करते जाएंगे अंदर वो न्यूरल नेटवर्क्स, इसको ही साइंस में क्या कहते हैं, न्यूरल पाथवेव्स बोलते हैं, राइट तो योर ब्रेन कैन गेट प्रैक्टिस विदाउट हैविंग टू डू anything more than imagining you are performing, right? Neurons in the brain that fire together wire together, this is the science term, right? This is the science term, neurons in the brain that fire together. आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच बीच में न्यूरल पाथवेव्स, those are the neural pathways. मतलब आपके ब्रेन के अंदर आप यही है, ऑटो मोड में जाना माना वही है, क्योंकि आपका जो क्रिएशन है बार बार करने से वो न्यूरल पाथवेव्स बन गया, फिर आप नहीं चाहते हैं तो भी उसी रोड में चला जाता है. इसको ही बाबा के लैंग्वेज में बोलना है ना तो क्या कहते हैं, संस्कार. जब ये संस्कार रूप में ले लेते हैं तब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, क्योंकि बार बार करते आदत भी संस्कार रूप ले लेता है. तो फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर, मीनिंग दैट दे क्रिएट ए न्यूरल पाथवे इन द ब्रेन दैट मेक्स एन एक्शन ईजियर टू डू. जो ब्रश करना है या भाई शेव करना है या खाना है सब ऑटोमेटिक में चला गया है, क्योंकि दैट मेक्स एन एक्शन ईजियर टू डू. तो यहाँ पर और एक गोल्फर का भी एग्जाम्पल दिया है, आई नेवर हिट ए गोल्फ शॉट नॉट इवन इन प्रैक्टिस विदाउट हैविंग ए शार्प पिक्चर ऑफ दैट इट इन माई हेड. ये गोल्फर है, इसका नाम है मारिपोయింది मल्ली, इसका नाम नीचे है, आप देखेंगे बहुत सारे नाम है ना, जैक निकोलस. He is Jack Nicklaus. He says that मैं गोल्फ खेलने के टाइम पर विदाउट सीइंग द शॉट मैं कभी नहीं जाता हूँ कोर्ट में, हर शॉट देखता हूँ. देखो फर्स्ट आई सी वेयर आई वांट द बॉल टू फिनिश, इतना क्लियरली. दिस इज द विविड पिक्चर ऑफ द विजुअलाइजेशन. विविड मतलब बहुत डिटेलिंगली, बहुत डीपली उसको देखना, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं. देन आई सी इट गोइंग देयर, इट्स ट्रेजेक्टरी एंड लैंडिंग. व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी, वो पाथ जो जाता है जैसे कर्व शेप में, अब गोल्फ बॉल किया तो फिर वो कर्व शेप में जाता है, वो क्लियरली देख रहा है बार बार वो कैसे शेप में जा रहा है और कैसे लैंड हो रहा है. द नेक्स्ट सीन शोज मी मेकिंग द स्विंग that will turn the previous images into reality, right? तो वो जैसे कि ऑटो मोड में चले जाए, इतना डीपली इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो ये सब हमने देखा. हाँ जी, बहुत सारे गेम्स में चलता है, लेकिन जो जी या तो व्हाट इट डज, हाँ ये विजुअल इमेजरी क्या कर सकता है. तो बहुत सारे बेनिफिट्स है इसका, थोड़ा बहुत बेनिफिट्स हम यहाँ पर देखते हैं. एक्सपीरियंस ग्रेटर कमिटमेंट एंड मोटिवेशन.
जब आप ये करते हैं विजुअल इमेजरी बार 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 बार, तो यू एक्सपीरियंस ग्रेटर कमिटमेंट, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट करने नहीं पड़ रहे हैं ना बार बार, क्योंकि वो ऑटो मोड में चले गए। तो फिर यू फील दैट ग्रेटर कमिटमेंट एंड इट मोटिवेट्स यू, क्योंकि आप बार बार विजय पाने का जो संकल्प कर रहे हैं ना, वो फिर कमिटमेंट भी हो गया और आपको वो प्लेजर भी देता है कि मैं जाके जीतने ही वाली हूँ, राइट? यू फील दैट हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन। एंड सेकेंड थिंग इज, बहुत सारे उसका बहुत सारे इसका बेनिफिट्स है। तो मैनेज वंस ओन एक्सपेक्टेशंस इमोशंस मोर इफेक्टिवली, क्योंकि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में अपने जो इमोशंस है या लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत अंदर इतना भरा हुआ है, उनको बहुत प्रेशर में ले आते हैं, है ना? अभी इतने दिन हम गए थे, हम सोच रहे बार बार, इतने छोटे छोटे बच्चे, स्पेशली जिम्नास्टिक्स एंड स्केटिंग्स, क्रिकेट, हर चीज़ में रहते हैं, लेकिन हम जहाँ जहाँ गए थे उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे, जैसे आज सवेरे स्वामी भाई भी कह रहे थे ना, हम एक स्टेडियम में गए थे, सरूर नगर स्टेडियम में, वहाँ जिम्नास्टिक्स के बच्चे सब छोटे 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 4 years 5 years, और इतना फ्लेक्सिबल बॉडी, हम देख के सोच रहे थे इतना फ्लेक्सिबल हमारा भी था पहले, लेकिन आज नहीं है। तो वो बचपन से जो है ना, और वो दे आर वेरी टफ, क्योंकि आज हारेंगे कल जीतेंगे। अभी स्कूल वालों को चलो ठीक है, उनको 1 साल पढ़ने के बाद उनका रिजल्ट क्या है मालूम पड़ेगा, जीतेंगे या नहीं, या दे आर विनिंग और नॉट। लेकिन खेल जगत में ऐसा नहीं है ना, हर रोज उनका फेलियर भी है, हर रोज उनका सक्सेस है। तो मेंटली दे बिकम वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। दे डोंट सबमिट टू एनीथिंग वेरी इजीली। छोटी छोटी बातों में रोना धोना या फील करना, नेगेटिवली फील करना नहीं है। आज चलो थोड़ा सा फील किया, फिर कल तो फिर कोर्ट में आना ही है, कल जो प्रैक्टिस है मुझे करना ही है। तो दे बिकम वेरी टफ, दे कैन वेरी वेल मैनेज देयर इमोशंस। धोनी के बारे में हम जब MS के प्रसाद के कल आएंगे, वो भी उनको बहुत, ही इज़ वेरी इंथुजियास्टिक, मेरे को आना है आपके बीच में, क्योंकि बहुत सारे कहानियाँ सुना है। उनका इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी है, तो आप सभी जानते हैं उनको, कमेंटरेटर है राइट नाउ, बट ही वाज BCCI चीफ सिलेक्शन कमेटी में थे, चीफ सेलेक्टर भी थे। तो उनके इतने सारे कहानियाँ, और 2-3 कहानियाँ तो स्पेशली धोनी के ऊपर था। तो उनको पूछा, मतलब अभी जो लास्ट मैच में कैसे हार गए, वहाँ से लेके हमारा कहाँ तो गया बात। तो वो बता रहे थे धोनी के घर में देखना है उनको, था कि वो इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, वो देखना था। क्या नाम है उनका? मिस्टर कूल। यस, मिस्टर कूल। कैप्टन भी है, लेकिन उनका अदर नेम इज मिस्टर कूल, कैप्टन कूल, मिस्टर कूल। तो उनको देखना था कि ये कैसे इतना स्टेबल रह पाता है। इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं उनके सामने, सब सीनियर प्लेयर्स हैं, लेकिन ये कैसे मैनेज करता है छोटा लड़का। तो MS के प्रसाद ने पूछा, जब सेलेक्टर था तब उन्होंने पूछा कि मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। तो एक बार जब थे वहाँ पर, उन्होंने फ़ोन किया MS के भैया आ जाएंगे हमारे घर सवेरे 7 बजे को, पूछा 9 बजे को लेके गए उनके घर में। और ही सो अमेज्ड टेलिंग MS के प्रसाद, बोलते हैं कि मैं 9 बजे से 3:30 बजे तक उनके घर में था, एक साउंड भी नहीं था उनके घर में, एक भी आवाज नहीं आया। उनके मम्मी है, पापा है, सिस्टर है, और भी बहुत सारे लोगों का बोल रहे थे, इतने लोग घर में हैं लेकिन एक भी आवाज नहीं था, बहुत शांत, वाइब्रेशंस भी एकदम कूल वाइब्रेशंस था। तो तब मेरे को समझ में आया कि ये कूलनेस जो है अपब्रिंगिंग में ही है, उनके माँ बाप से ही, उनके पालना जो परवरिश हुई है घर का, उसी माहौल से आया है। इसलिए इतना स्ट्रांग अंदर अपने इमोशंस को मैनेज करना और पूरे
टीम को वो चलाना वेरी डिफिकल्ट। और जब आपके सीनियर्स आपके टीम में हैं तब उनको चलाना बहुत बड़ी बात है। तो उस समय भी मैं कर रहा है, मतलब इसका अपब्रिंगिंग ही ऐसा है। फिर मैं इतना घंटा बैठा था उनके घर में, उनके पिताजी से पूछा कि आपका बेटा ऐसे कैसे रह पाता है। तो उनका शब्द वो कोट कर रहे थे कि मेरा बेटा इसके पहले भी था, अभी भी है, फ्यूचर में भी रहेगा ऐसे ही। सिर्फ 3 शब्द में मैं उनका पूरा जो है, उनका जो जीवन है, मैं समझ लिया और कुछ नहीं बात किया उनके बेटे के बारे में। और वो बोलते हैं कि धोनी को पूछा व्हाट इज मनी फॉर यू, क्योंकि आप इतने पुअर घर से आए हैं, फिर जैसे कि आप टीटी थे ट्रेन के, फिर जाके इतने हजारों करोड़ों में कमा रहे हैं आज। तो व्हाट इज मनी फॉर यू, व्हाट इज द वैल्यू फॉर यू। कितना अच्छा सुनाया। बाबा कहते हैं ना पेट कितना मांगता है। हाँ, तो वो दिखा के बताया एमएस के, बोलते हैं पेट इतना है हमारा सभी का, अगर थोड़ा मोटा है व्यक्ति या ज़्यादा खाते हैं तो और थोड़ा सा एक्सपेंड हो सकता है। आज आप सब्जी रोटी दाल चावल सब खाओ, वही अंदर जाता है, इतना ही रहता। या 10 प्रकार के सैलड भी रखो आपके टेबल पर, सेम जाता है। या और 10 प्रकार के वैरायटी डिशेस रखो, वो भी सेम जाता है। और मैं जो कमा रहा हूँ ना अभी, हजारों करोड़ों में जो कमा रहा हूँ, आई नो वेरी वेल दैट आई एम नॉट गोइंग टू यूज ऑल ऑफ दैट। वो कौन मेरे पोतरे पड़पोतरे वो यूज करेंगे भी मुझे मालूम नहीं है। हाँ, आई डेफिनेटली मेरा इनकम है, मैं करता हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से मालूम है, मतलब देखो कितना ग्राउंडेड है वो। मुझे अच्छे से मालूम है मेरे कुछ भी नहीं है यहाँ का। अर्थात बाहर के लोग भी कितना ग्राउंडेड है, कितना वैल्यूज के साथ चल रहे हैं, वो हम देखते हैं। कल कोई बता रहे थे, भाई साहब बता रहे थे, श्रीधर के पास गए थे जो 13 इयर्स फील्डिंग कोच रहे हैं भारत के। वो भी कितना ग्राउंडेड थे, कितने बार तो थैंक्स बोल रहे थे, कितने बार तो झुक झुक के हाँ बोल रहे थे, कितनी सारी कहानियां हैं उनके पास, आना चाहते हैं, मतलब बहुत ग्राउंडेड। ऐसे नहीं बने दिग्गज। हाँ, मिस्टेक्स तो करेंगे, सब लोगों के पास रहेगा, लेकिन उनके वैल्यूज सिस्टम्स भी बहुत हैं। अभी आएंगे गोपीचंद को देखेंगे आप, कितना कूल है वो, कितना अपने इमोशंस को कैसे संभाल पाते हैं। इट्स नॉट ईजी नो। अब हम जो टीवी में देखते हैं उनके बारे में, या उनके जो बच्चे हैं, सिंधु चली गई, साइना चली गई, ये चला गया, उनके पास से कितना प्रेशर, लेकिन हाउ ही मैनेजेस हिमसेल्फ, हिज इमोशंस, हिज फीलिंग्स बहुत अच्छे से संभाल पाते हैं। जब हमारे बाबा के कमरे में आके बैठते योग में, कमेंट्री रखे, जस्ट ही इन्वॉल्व्स। कभी कभी तो हमको उठाना पड़ता है कि चले हम, जस्ट इन्वॉल्व्स। बहुत ध्यान भी करते हैं, बहुत मेडिटेशन भी करते हैं, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन दे नो हाउ टू मैनेज देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स। सो विजुअलाइजेशन के द्वारा क्या होगा, मैनेज वन्स ओन एक्सपेक्टेशंस एंड इमोशंस मोर इफेक्टिवली। एंड देन मेंटेन प्रेजेंस ऑफ माइंड इन हाई प्रेशर सिचुएशंस, क्योंकि पहले से प्रोग्रामिंग हो गया है ना अंदर, तो बहुत सारे प्रेशर सिचुएशंस में अपने आप को बहुत इजीली मैनेज कर पाते हैं। एंड देन एम्प्लीफाई मोटिवेशन। और भी क्या क्या फायदे होते हैं, आपके मोटिवेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यू आर कमिटेड, right? You are committed, you are seeing that success, so your motivation is amplifying. And then experience more confidence in our own abilities. हम अपने आप की जो क्षमताएं हैं, अपने आप की जो स्पेशलिटीज हैं,
उसको हम जानने लगते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को बिलीव नहीं करेंगे, कुछ भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एक्सपीरियंस मोर कॉन्फिडेंस इन आवर ओन एबिलिटीज, या दे विल गेट कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं ना टेंशन में आने के लिए, यहां पर बार बार ये थिएटर में देख लिया है वो चित्र को, राइट। हाँ, जो करना है वो इधर फिक्स हो गया। एक बार सिनेमा मूवी मेकिंग होने के बाद फिर वो डायरेक्टर इतना वो मेकिंग के लिए फिर नहीं सोचता, क्योंकि हो गया है। तो यहाँ पर भी माइंड के थिएटर में वो मेकिंग हो गया, मूवी बना दिया, मेरे को ये करना है, ऐसे स्मैश मारना है, ऐसे करना है, ऐसे टारगेट को अचीव करना है। तो वो स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा, राइट। यू आर एबल टू रिलेट व्हाट आई एम सेइंग? या मेंटेन ए पीक फॉर्म एंड क्विक एंड रिकवरी व्हेन इंजर्ड और सिक। ये और एक स्पेशल पॉइंट है, क्योंकि स्पेशली स्पोर्ट्स वर्ल्ड में जो इंजरीज है हमेशा किसी ना किसी का चलता ही रहता है। ये ऑपरेशन हो गया, अभी 2 महीना मेरे को छुट्टी में हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। बहुतों को हमने इस टाइम में बताया, आप विजुअलाइजेशन करो बैठ के, राइट। हाँ, आप भले प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, रोज नहीं जा पा रहे, लेकिन विजुअलाइज करो कि आप कर रहे हैं, ताकि योर न्यूरल नेटवर्क्स आर स्टिल अलाइव, राइट। तो मेंटेन ए पीक फॉर्म एंड क्विक एंड रिकवरी व्हेन इंजर्ड और सिक। तो बहुत सारे ऐसे है, लर्न एंड रिप्रोड्यूस स्किल्स मोर क्विकली, एक्यूरेटली एंड स्मूथली, एंड अवॉइडिंग द रिपीटेशन ऑफ सेम मिस्टेक्स। जहां पर नहीं करना है, क्या करना है, वो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हो गया, तो रेपिटेशन जो है वो कम हो जाएगा। और एक यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, ये लैनी बैशम है, ये ओलंपिक गोल्ड विनर है। तो ये अपना अनुभव से, शूटिंग है उनका, तो ये कहते हैं कि मैं ड्राई रन करता हूँ, मैं कभी कभी शूटिंग रेंज में नहीं पहुंच पाता हूँ, लेकिन बार बार रूम में ही बैठ के इतना ड्राई रन करता हूँ। देखो, आई सिमुलेटेड शूटिंग। व्हाट इज सिमुलेशन? वर्ड्स देखो कैसे यूज किया है। व्हाट इज सिमुलेशन? नॉट डूइंग द एक्शन बट एज इफ वो कर रहे हैं वो देखना, मतलब यू आर लाइक डुप्लीकेटिंग, राइट। योर थॉट को जैसे देख रहे हैं, एज इफ यू आर सिमुलेटिंग शूटिंग फॉर 2 to 4 hours इन ए स्पेयर बेडरूम। शूटिंग जितना करते हैं फिजिकली, उससे ज्यादा बैठ के वो चित्र बार बार देख रहे हैं। A technique called dry firing. I won the world championship that year in Seoul. राइट, जितना वो विजुअलाइजेशन टेक्निक को अप्लाई किया, वो उस समय जीत पाया ओलंपिक में। तो ऐसे आप कुछ एग्जाम्पल्स देंगे ताकि वो उनको आप अपीलिंग लगेगा, राइट। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग थॉट्स है, क्राइटेरिया फॉर मैक्सिमम रिजल्ट विथ मेंटल इमेजरी। क्या करना है, ये डिफरेंट पॉइंट्स है, ये हम देखेंगे। क्लैरिटी एंड विविडनेस, जो आप चित्र देख रहे हैं बहुत क्लियरली देखना है, इतना निटिग्रिटीज में जाना है, इतना डीपली जाना है, वहाँ का क्या माहौल है, कैसा कलर लाइट्स है, या कैसे ड्रेस पहने हैं, उसका स्मेल क्या है। 5 सेंसर ऑर्गन्स इन्वॉल्व करना है उसमें। एक है स्मेल, क्या स्मेल है, क्या फील है, सब सेंस ऑर्गन्स को आप, दिस इज व्हाट विविडनेस, टू मच डिटेलिंग, clarity. And second thing is motion. Not only you are seeing just वो play कर रहे हैं,
मैं इधर हूँ यही नहीं, लेकिन मेरा स्ट्राइक कैसा है, मेरा मूवमेंट्स कैसा है, कैसे मैं कर रही हूँ वो गेम को, जो भी उनका रेस्पेक्टिव फील्ड है, रेस्पेक्टिव गेम है, उसमें कैसे मूवमेंट्स है, कैसा मोशन है, वो भी देखना है. एंड देन पर्सपेक्टिव. व्हाट इज पर्सपेक्टिव? पर्सपेक्टिव इज द थिंग्स अराउंड, क्या क्या हो रहा है. ये जब भी हमको थोड़ा टाइम मिलेगा फिर और थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि अभी से जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. लेकिन अभी 2 मिनट में गोपीचंद भाई आएंगे, वो वीडियोस प्ले करेंगे, मैं उनको लेके आती हूँ तब तक.